present before you all on behalf of Dadichi, the Competitive Society of Rajdhani College, University of Delhi. Our society is one of the most renowned and eminent civil services society in entire DU circuit. Today, we have as our guest speaker Shubham Kumar Yadav sir, AIR 263 of 2022 batch. He has done his BSc honors from Hansraj College, University of Delhi. He had also cracked IIT JAM with AIR second. It's an honor for us to have him today. Before that, I would like to inform all our audience to kindly help us in maintaining the decorum of this webinar. Unmuting yourself is not allowed at any cost. Otherwise, you will be immediately removed from the session. There will be a Q&A session at the end. Hence, get ready with your queries and questions and type it in the chat section. It will be addressed at the end. So before that, I would like to invite our Honorable Principal Sir for enlightening us. Thank you. Thank you, Risha. So, good morning, all of you. I think Mr. Shubham Kumar has joined. Sir. Shubhamji, good morning. Morning, sir. Morning, and my warm welcome for taking out time even on Sunday for my students and interacting with them. And I'm really thrilled to see my all youngsters that they know the value of the time of a young bureaucrat, that somehow you can only take out time on Sunday. Mr. Shubham, we have this platform, Dadichi. We formed it during last few years back, where we guide our students, we provide them uh, we just motivate them to enter India, and but they help in many ways. And luckily, the very sincere team of our students, they're so concerned, and they are doing in such a, I mean, meticulous way. They conduct exam to induct the students, new students in this the Dadichi. It's a very rigorous exam. After passing the rigorous exam, only one can be a part of the Dadichi from the student side. So I'm really happy that this activity is going on for last more than 6 years. And my students, they're really lucky whenever they request officers like you, you take out time and you interact with all of them. So thank you so much. And Rishabh, Dr. Barun has also joined. I think you had not informed him. Shubhamji, my colleague, associate professor in the Department of English, Dr. Barun Mishra is the convener of this society. In fact, this changeover took place during last month. So it will take little bit more time to get the things in order. So Rishabh, I just ask you, request Dr. Barun to say a few words and welcome our guest of this morning, Mr. Shubham. Thank you, Shubhamji. And once again, really heartiest welcome to you to be with us on this platform. Thank you. Pleasure is mine. Thank you so much, sir, for your kind words. Now, I I would like to invite our convener, sir, Varun Mishra, sir, for enlightening us. Okay, thank you very much, sir, for your kind words. I welcome on behalf of Dadichi, our guest speaker today, to inspire our aspiring students of Rajdhani College, the students who are members of the group called Dadichi. So we look forward for your words of wisdom, which will help my students in
their preparation. Thank you very much, Subhamji, for your presence here. Okay, over to you now, sir. Thank you, sir. So, without any more delay, I would like to invite Sumar Kumar Yadav, sir, for enlightening us on today's webinar. Firstly, thank you for inviting me. Just a few queries. Is my voice and video clear and audible? It's clear, it's clear. And what are the means of communication we are using? Is it bilingual or English or Hindi? Introduce me briefly. This was my second attempt at UPSC CSC. My option was mathematics, and it has roughly been a journey of 2 years for me, plus 1 year of the exam cycle. And I think we can take this forward in the sense that we'll ask queries related to prelims, then mains, then interview. I would refrain or I would not answer questions such as which books did I follow, what was my strategy, what was my timetable. Many great toppers have already shared their strategies, books, etc., which you can simply Google. I mean, if I'm here for a conversation in person to person. Okay, okay, sure. Hello. Is it fine? Yeah, okay. Just give me a second. शुभम जी आपकी कुछ बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है आपके उधर से. Okay, okay. Let me clear. Is it fine now? Yes, sir. Just one request here. If I'm sitting here, at least some of you can switch on your camera if possible. If possible, because very weird to talk to blank faces. Yeah, they'll do it. They'll do it. It's fine. If it's any emergency or anything, फिर रहने दो. बाकी if possible, please कर लेना. And secondly, bear with my voice. थोड़ा सा मुझे जुकाम है अभी, तो I'll wrap this session as soon as possible. मुझे फिर 12:30 के आसपास डॉक्टर के पास निकलना है. तो ऐसे ही कर लेते हैं. पहले प्रीलिम्स के रिगार्डिंग पूछ लो आप, मेंस के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, फिर इंटरव्यू के रिगार्डिंग बात कर लेंगे. एंड मेजर प्रॉब्लम इज कि बेसिक क्वेश्चन जो है जो आप गूगल से मिल सकते हैं वो सवाल अवॉइड करेंगे. कि मेरी बुक लिस्ट क्या थी, किसी की गूगल सर्च करेंगे, आपको दुनिया भर के टॉपर्स की दुनिया भर की बुक लिस्ट मिल जाएंगी. कोई स्पेसिफिक दिक्कत आ रही हो कि ये किताब पढ़ने मन नहीं कर रहा है, इसके कुछ ऑल्टरनेटिव, वैसे सवाल हम फिर भी एंटरटेन कर सकते हैं. बेसिक मंडेन क्वेश्चंस अवॉइड करेंगे. एंड ऋषभ कैन कोऑर्डिनेट, जिसको क्वेश्चन पूछना हो वैसे हैंड रेस कर ले, फिर बारी बारी से ऋषभ नाम लेंगे, फिर उसी ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ लेंगे हम. तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं. मैं बेसिक्स आप एक बता देता हूँ मेरी जर्नी कैसी रही थी. मैं अराउंड शुरू के जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी तो इन द इनिशियल 6-7 मंथ्स मैं फोकस कर रहा था अपने ऑप्शनल पे. उसके अलावा बेसिक चल रहा था कि जीएस थोड़ा थोड़ा देख लेता था. हाँ, बट न्यूज़पेपर वॉज कॉन्स्टेंट पूरे 2-2.5 साल. शायद ही ऐसा कुछ टाइम रहा हो जहाँ पर न्यूज़पेपर मैंने स्किप किए हो. कभी कभी हो जाता, बैकलॉग आ जाता था. तो उस दिन भी मैं ऐसे मान लो आज 4-5 अखबार हो गए हैं, तो सारे अखबार एटलीस्ट हेडलाइन और बेसिक्स लेके आज का अखबार पढ़ लो. 5-6 महीने ऑप्शनल करने के बाद फिर मैं जीएस पे स्विच किया था. जीएस में जो ऑर्डर था कंप्लीट करने का वो था पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये दोनों साथ में. इसके अलावा ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को साथ में पढ़ सकते हो, लिंकेजेस दिख जाते हैं. इसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर एकदम लास्ट प्रायोरिटीज पे थे. साइंस एंड टेक मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस था, तो कभी दिक्कत आई नहीं. गिवन कि यूपीएससी भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा था, इससे बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं पूछ रहे थे सवाल, तो ऐसे रहा. उसके बाद फिर दिक्कत ये हुई थी कि 7 महीने ऑप्शनल में देने के बाद हिस्ट्री में पढ़ नहीं पाया था ढंग से. तो मेरा पहले अटेम्प्ट में 10-11 नंबर से मिस हो गया था, विच इज़ इक्वलेंट टू कि 4-5 क्वेश्चन हिस्ट्री के आप सही कर देते, और उतने हो जाते हैं अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ढंग से पढ़ के जाएँ, एंशिएंट मेडिवल ढंग से पढ़ के जाएँ, आर्ट एंड कल्चर भी देख के जाएँ,
तो अराउंड 15 से 18 सवाल देखने को मिलते हैं, जैसे 3-4 सवाल आप बड़े आराम से बना सकते हैं। फिर लेकिन अक्टूबर में था 2021 का प्रीलिम्स, तो उसके बाद 2 ही महीने बचे थे, जनवरी से वापस प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट करना था। तो उन 2 महीने में मैं एथिक्स पढ़ रहा था, एसए का पढ़ रहा था और सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस मेंस का पढ़ रहा था बेसिकली। जनवरी में मैंने अपनी मैथ्स की ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज लगाई और जैन एंड या फेब स्टार्टिंग में मैं वापस प्रीलिम्स मोड में आ गया था 2022। वो कंप्लीट किया, 5-6 महीने प्रीलिम्स के लिए ढंग से पढ़ा, वो क्लियर हो गया था प्रीलिम्स। बट देन जो प्रीलिम्स मेंस के बीच में रफली 90 डेज मिलते हैं, आपको पता होगा, जून से सितंबर के बीच 100 दिन मिलते हैं, पर 10 दिन वेस्ट हो जाते हैं ट्रैवलिंग और उन सब में। उनमें मैं अराउंड 40 दिन के आसपास में बीमार हो गया था, आई वॉज इल। तो वो थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, उस वजह से मैं मेंस बहुत ज़्यादा अच्छे से कर नहीं पाया। मेरे पास सोर्स सॉर्टेड था कि मुझे कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। पर वो 40 दिन जब बीमार हुए तो आई वॉज प्लेइंग ऑन द बेयर मिनिमम्स कि ये चीज़ें कर लेते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। उन 40 दिन के बाद मैं ऑप्शनल में 7 महीने इतने अच्छे से कर चुका था पहले कि मुझे 20-25 दिन में ऑप्शनल में देने पड़े और मेरा कंप्लीट हो गया, विच इज़ हार्ड। 20-25 दिन में ऑप्शनल करना बहुत हार्ड हो जाता है एक पॉइंट के बाद, क्योंकि आपको इतना सारा पढ़ना होता है। रफली सिंपल कैलकुलेशन बोलें तो सब किसी के ऑप्शनल में कम से कम 13-15 टॉपिक्स होते ही हैं। 20 दिन में आप एवरेज निकाल लें तो आपको एक टॉपिक जो पूरा सिलेबस का बड़ा बंडल दिया रहता है, वो आपको अराउंड 2 दिन में कंप्लीट करना है, विच इज़ वेरी हार्ड, गिवन कि आपको टेस्ट भी देना है और रिवाइज भी करना है, प्लस टॉपिक्स भी पूरे कवर नहीं होते हैं। इसके बाद मैंने जैसे तैसे ये 40 दिन की जो बीमार था ना, उसमें से न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत जितना हो पाता था देख पाता था। 20 दिन मैथ्स किया, 30 दिन में अपने मेंस का पढ़ रहा था। मेरे पास डिजिटल नोट्स थे, मैं डिजिटल नोट्स बना रखे थे मैंने, पर पेपर से 15 दिन पहले वो नोट्स वाइप आउट हो जाते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर था वो फॉर्मेट हो गया था मेरा। तो इफेक्टिवली मेंस से 15 दिन पहले मैंने 20-25 दिन मैथ्स ऑप्शनल पढ़ा था और थोड़ा बहुत जीएस पढ़ा था, जो जिसके नोट्स मेरे पास नहीं थे। तो इट वॉज काइंड ऑफ वेरी सैडनिंग, मतलब बहुत अजीब सा हो गया था कि कुछ भी नहीं है हाथ में। बट देन फ्रेंड्स फैमिलीज का सपोर्ट था, तो मैं पेपर दे के आया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि होगा, तो आई वॉज वर्किंग ऑन माई बैकअप ऑप्शंस की मैं आगे क्या करने की सोच रहा हूँ। उन बैकअप ऑप्शंस में अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे कैसे क्या सोच रहा था। बट फिर कॉल आ गया, फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ इंटरव्यू के गाइडेंस के लिए 2 महीने के अराउंड। तो ऐसे ही रहा, फिर रिजल्ट आपके सामने ही है। अब इस वैसे क्वेरीज स्टार्ट करते हैं, क्यों नहीं रखते हैं इसको। मैं ऐसे लेक्चर देता रहूँगा, उससे किसी का कुछ बेनिफिट नहीं होता है, मुझे लगता है। थैंक यू। Thank you, sir. Now I request all the audience to please put your queries in chat box. If anyone have any query, please put your query in chat box, please. चैट बॉक्स में नहीं, आप हैंड रेस कर लीजिए, तो फिर अनम्यूट करके डायरेक्ट भी पूछ सकते हो, ऐसे टाइप करने की जरूरत नहीं है। Okay, sir. ठीक है, समझ गया। ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके बाद चैट्स में कुछ क्वेश्चन है, उसी ऑर्डर में ले लेंगे, ठीक है। Okay, sir. पहली बात, द पॉइंट इज कि मतलब अपने अपने पर्सनल ओपिनियंस होते हैं। मेरा इस कि यूपीएससी की प्रिपरेशन जैसे 2 साल की जो हम कहते हैं, मैं 2 साल के लिए मैं महीनों में गिनता हूँ। आपको जीएस करने में अराउंड 10-11 महीने लगेंगे, डिपेंडिंग आपका फेस कितना है लर्निंग का। फिर आपको एक बंडल लगे अपने ऑप्शनल पे, जो डिपेंड करता है आपका ऑप्शनल क्या है। मेरा मैथमेटिक्स था, मुझे 6 से 7 महीने लग गए थे उसे कंप्लीट करने में। पहला अटेम्प्ट है, अगर आपका अपने प्रीलिम्स नहीं दिया तो वो डर इतना रहता है कि प्रीलिम्स 3-4 महीने बड़े आराम से मांग लेगा आपके। तो ये जो 10-11 महीने प्लस 7-8 महीने प्लस 4-5 महीने, इनको जब ऐड करेंगे तो अराउंड वो 1.5-2 साल के आसपास की साइकिल बैठती है। 1.5-2 साल पढ़ लेने के बाद आप 1 साल और ड्रॉप करके बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर एक आदमी बिना पढ़े प्रीलिम्स देगा तो हो सकता है 10-15-20 नंबर ले आए। 2 साल पढ़ने के बाद देगा तो ही माइट बी वेरी क्लोज टू कट ऑफ। अगर कट ऑफ 80 है तो हो सकता है वो 60 तक आ जाए, 40, 50, 60 तक आ जाए। 1 साल और ड्रॉप लेने के बाद ना वो 10 नंबर इंक्रीज करना बहुत हार्ड है।
उसके लिए आपको सिर्फ रिविजन्स की जरूरत होती है, और रिविजन्स आप बाकी चीज़ों के साथ कर सकते हो। तो सिंपल पॉइंट इज कि जब पहली बार तैयारी करनी, जैसे मैंने अपना पर्सनल बताऊं तो मेरा था कि मैं 2 अटेम्प्ट तो एकदम प्रॉपर लूंगा, क्योंकि पहले अटेम्प्ट बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड होती हैं। 2 अटेम्प्ट के बाद यानी 3 साल के बाद मैं खाली नहीं बैठूंगा। आई माइट ज्वाइन, कोई जॉब कर लो या कोई कुछ भी कर लो, अपना स्टार्टअप कर रहा है, कोई मास्टर्स कर रहा है, कुछ एटलीस्ट एंटर इनटू द फील्ड अगेन, क्योंकि फिर वो खाली बैठे रहते हैं, मेंटल एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, साथ में आपकी इकोनॉमिक वैल्यू घट रही है। आप 2-3 साल से जॉब में नहीं है, 3 साल इज लाइक हमारी नॉर्मल कॉलेज की एक डिग्री हो जाती है। तो उस सेंस में एक बैकअप आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन वो फिर उस अलाइनमेंट के साथ होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सितंबर में अपना मेंस दे के आया, उसके बाद मैं देख रहा था कि क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने एसएससी, बैंक, ये 2 एग्जाम दिए। बैंक में भी एसबीआई, आईबीपीएस, मैं सब एग्जाम दे रहा था और सारे एग्जाम मैंने क्लियर किए। उसके बाद मेरा रिजल्ट आया कि मेरा मेंस हो गया है। तो जब मैं 2017 जुलाई 2020 से ये 2022 एंड तक मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं था, क्योंकि एग्जाम की साइकिल ही वैसी थी। मैं प्रीलिम से बाहर हो गया था, तो 1 साल बाद से मौका मिलता है। वो जब पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं ना, वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, विच इज़ वेरी गुड। आपका मन है, आप पेपर देना है, जो भी देना है, आपको मास्टर्स करनी होगी, मास्टर्स करिए। मैं मास्टर्स को थोड़ा, कहते हैं ना, मेरे लिए थोड़ी पूजनी वाली बात होती है, वो थोड़ी सैंक्टम वाली बात है कि मास्टर्स तब करनी चाहिए आदमी को जब वो कन्विक्टेड हो कि हाँ मुझे इस चीज़ में आगे अपना करियर देख रहा हूँ मैं। सिर्फ नाम भर के लिए मास्टर्स लेंगे तो बड़ी दिक्कत होती है। रही बात जितनी कि आप, वो होता है ना कि बैकअप ले रहे हैं तो आप सीरियस नहीं है अपनी प्रिपरेशन को लेके, आई वुड से इट्स ऑफ फैलेसी। हाँ, इतना सजेस्ट करूंगा कि पहला अटेम्प्ट या दूसरा अटेम्प्ट जब दे रहे हैं तो ये सब ना सोचें, अपना तैयारी ढंग से करें। उसके बाद थोड़ी चीज़ें एक्सप्लोर करते रहने चाहिए। नहीं तो क्या है ना कि आपको एग्जाम सोचने का टाइम नहीं देता है। 3 महीने प्रीलिम्स करेंगे, फिर 3 महीने मेंस होगा, 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, 3 महीने तक इंटरव्यू चलेंगे, अगले 2 महीने वापस प्रीलिम्स आ जाएगा। ये 2 महीने 2 महीने 2 महीने के चक्कर में ना पर्सपेक्टिव लूज कर देते हैं कि आपको सिर्फ अगली स्टेज दिख रही है, आप बाहर हो या नहीं और आउट। ट्राई करिए, थोड़ा देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर टॉपर बात करता है, मेरे बहुत लोगों से बात हुई, कोई जॉब कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, सबके अपने बैकअप्स रहते हैं। आपको उसमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, और एट द एंड ऑफ द डे इट शुड बी योर बैकअप। उसको प्राइमरी बना रहे हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट देन बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। आई होप आई हैव एड्रेस्ड द क्वेरी। मैं एक बार चैट के क्वेश्चंस ले लेता हूँ बारी बारी से। ओके, क्या क्वेश्चन है? हाउ टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, शिरीष पांडे। अंडरस्टैंड द सिलेबस, यार देखो, जब पीवाई की मैं कैसे करता था, जब मेरे को समझना होता था, मेरे पास एक एक्सेल शीट होती थी। प्रीलिम्स के लिए तो देखो बहुत ज़्यादा यूजफुल है नहीं सिलेबस, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा सा है, प्लस उससे क्वेश्चन भी एकदम बनाने के लिए आप पीवाईक्यूज लगाने पड़ते हैं, और पीवाईक्यूज का ट्रेंड भी वो चेंज करते रहते हैं। जैसे अभी 2 साल पहले चेंज किया है, जो रिसेंट क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं। मेंस के लिए सिलेबस का रहता है कि आप एक एक्सेल शीट बनाएं, जैसे मैंने बना रखी है, www.shubhamkumaryadav.com सर्च करेंगे ना, तो उसमें आपको मेंस की एक एक्सेल शीट मिलेगी। उसमें मैंने दिखा रखा है कि मैं कैसे पढ़ता था। मैं एक जो GS2 पेपर है उसमें देखता था कि सबसे ज़्यादा वेटेज पॉलिटी का है, पॉलिटी में भी सबसे ज़्यादा वेटेज फेडरलिज्म का है। उस पर आप क्लिक करोगे तो फेडरलिज्म के सारे क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं, किस साल में पूछे गए हैं, कितने मार्क्स के पूछे गए हैं, पूरी लिस्ट खुल जाती है। तो आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ, पॉलिटी में, मतलब सिलेबस के साथ पॉलिटी में फेडरलिज्म इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, GS2 में पॉलिटी इज इंपॉर्टेंट, पॉलिटी में फेडरलिज्म इज इंपॉर्टेंट, एंड फेडरलिज्म में ये क्वेश्चन आते हैं जिनकी बेसिक थीम ये दिख रही है। ऐसे हर टॉपिक के लिए इटरेट करना पड़ता है, और उससे हेल्प हो जाती है। आप नहीं तो अभी सर्च करके देख लेना, अगर बाकी कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन अगेन। बाकी ये जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि सिलेबस को अंडरस्टैंड कैसे करें, उसका कोई वो नहीं है। आपको पीवाईक्यूज देखते रहने पड़ेंगे बार बार, आपको कुछ टाइम का समझ में आने लगता है कि इस टॉपिक से किस तरह के सवाल बनते हैं। आई होप आई हैव एड्रेस्ड द क्वेरी। कुछ दिक्कत हो, अगर मैं अगर किसी का डाउट रिजॉल्व ना कर पाऊँ तो प्लीज आप आखिरी में एक दोबारा पूछ लीजिएगा। हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन। इसका कोई इलाज नहीं यार, मतलब सी वेरी सिंपली आपको सेल्फ टॉक करनी है। आपको पता होना चाहिए आप एग्जाम क्यों कर रहे हो। देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स, आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, बट मैं जब मेरे केस में सिंपल होता है, जब मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती थी तो मैं 2-3 सिंपल रूल थे कि कमरे में खाली नहीं बैठना है, एक्टिविटी कुछ ना कुछ करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे साइकिलिंग करना पसंद था, तो जिन दिनों में मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी मैं साइकिलिंग करने निकल जाता था, तो एटलीस्ट बॉडी एक्टिव रहती थी। 1-2 दिन में आपको ऐसे वापस रिस्टोर होने लगते हो, फिर पढ़ाई वाले मोड पे स्विच करो।
कोई ना कोई एक्सरसाइज, योगा, ऐसे दिन में मोनोटोनस ब्रेक्स ना हो, उसके लिए कुछ कुछ करते रहना, तो इट्स हेल्पफुल। सॉरी, खुशी तनवर सर, हाउ डू वेरी मच हाउ टू टेकल दैट अनसर्टेनिटी। कोई, देखिए एक मिनट, मैं एक बार जनरली एड्रेस कर दूं लोगों को। यार देखो, जितना भी है ना, जो भी गेम चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, जैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सबके लिए वैसे आ रहे हैं। इट्स हार्ड, मुझे पता है कट ऑफ नीचे 80 के आसपास आके रह गई होगी इस साल, पर वो सबके लिए हो रही है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ना हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम जो कर रहे हैं उससे बढ़ के हमें कुछ कोई बता दे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी बहुत से लोगों का होगा, मेरा भी होता था कि यार कोई मुझे बस इतना बता दे कि ये टॉपिक है, इसमें और एडिशनल क्या कर लूँ। वो एडिशनल कुछ नहीं होता, वो मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में वही चीज़ें कर रहा था, मैं सेकंड अटेम्प्ट में वही चीज़ें कर रहा था। सेकंड में मैंने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया, और मेरा सिंपल था कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा इलाज नहीं है कि आप ये वाले इस तरह के सवाल लगाए, इसको यहाँ से पढ़ लेंगे तो ऐसे सवाल हो जाएंगे। और अगर कोई बता रहा है तो आई डाउट इट, क्योंकि अभी शायद 1 और 2021 के अटेम्प्ट में थोड़े से सवाल मिले थे। वैसे इस साल के पेपर 2022 में थोड़े से मिले थे, 2023 में बहुत सारे मिल गए हैं। सैंपल सेट ही नहीं है इतना, तो आपके पास 1.5 साल के पेपर पे आप कैसे आगे का पूरा ट्रेंड डिफाइन कर देंगे। हाँ, एटमैक्स आप ये कर सकते हैं कि जो उसमें जो ऑप्शंस दिए थे या जो उसमें स्टेटमेंट्स दिए थे, वो स्टेटमेंट का सोर्स क्या है। क्या कोई इन एलिमिनेशन जो हम कहते हैं वो तो एलिमिनेट हो गई थी इस साल से, बट इंटेलिजेंट केस पर कभी भी काम करेगा आपकी जो पेरिफेरल नॉलेज है। जैसे शायद होम गार्ड पर क्वेश्चन आया था इस साल, कुछ यूनियन लिस्ट का दे रखा था। अगर आप अपने जिले में थोड़ा बहुत भी घूमे तो आपको पता होगा कि होम गार्ड यूनियन का स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे होते हैं। कुछ ऑप्शंस वैसे आप काट पीट के अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, बाकी वन स्टॉप सॉल्यूशन तो नहीं है। और ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे आपको 40 क्वेश्चन इफेक्टिवली ठीक करने हैं, तो उतना बड़ा गैम्बल नहीं है। इट्स हार्ड, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि इट्स नॉट हार्ड, पर 30-40 क्वेश्चन आप थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से हार्डवर्क से किया जा सकता है। एक बार ये थोड़े से अपन जिनका हैंड रेज्ड है इनके क्वेरीज ले लेते हैं। ऋषभ, नमस्ते सर। हेलो सर मेरा नाम कुमार कार्तिक है सर। सर मेरी एक क्वेरी है सर, जो यूपीएससी एग्जाम में सीसेट एग्जाम होता है सर, ये मैं आई एम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूँ सर, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। तो हम लोगों के लिए तो सर सीसेट एग्जाम एक ऐसा तरीका है जिससे सबसे पहले हम ही लोग छट जाएंगे इसमें सर। तो इससे कैसे पास हुआ जाए? जो 33% बोला जाता है लाने के लिए, वही इसमें लाना इतना मुश्किल हो गया है सर अब तो, क्योंकि लेवल ऑफ द क्वेश्चन मैथ्स को ज़्यादा उसमें फोकस कर दिया गया। तो हम मैथ्स अगर इतनी अच्छी होती तो साइंस ही लेते सर, ह्यूमैनिटीज क्यों लेते सर? तो इसलिए यार, सबसे ये तो मैं समझ रहा हूँ इधर, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ नहीं ये सजेस्ट करने के लिए कुछ भी सी सेट के मामले में, क्योंकि सिंपली कि मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, मुझे सी सेट में कभी दिक्कत आई नहीं। जैसे मेरे आप क्रेडेंशियल्स भी देखेंगे, मेरा बीएससी भी मैथमेटिक्स में है, तो मेरी जैम में रैंक 2 थी, तो नॉट अ वेरी गुड पर्सन टू आस्क टू। बट फिर एक बात ये भी है कि अब ऐसे तो मेरे जीएस में जो मेरे सिलेक्शन हुआ है, जीएस में बहुत ज़्यादा नंबर आए नहीं है मेरे, एवरेज मार्क्स है मेरे, मैंने ऑप्शनल के बेसिस पे ही निकाला अपना पेपर पूरा। तो फिर जीएस पे ही मैं एक अच्छा आदमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें तो एवरेज ही मार्क्स है मेरे। आप डिलेमा समझ रहे हैं मेरा, कि जिन चीज़ों में मेरे मार्क्स अच्छे हैं, जिस पर आप मेरे से गाइडेंस मांग सकते हैं, उस पर मेरी गाइडेंस सेंस नहीं बनाती, क्योंकि वो तो मुझे बचपन से आता था, नेचर गिफ्टेड है वो। और जिन चीज़ों में मैं सिर्फ एवरेज करके निकाला हूँ, उसमें मेरी ओपिनियन लेने का सेंस बनता नहीं है। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि सीसेट हार्ड हो गया, ये बात है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे भी समझ नहीं आता कि नंबर सिस्टम और इंस्टेड ऑफ जो बेसिक डेटा एनालिसिस हैं, जो बेसिक सवाल आने चाहिए एक ब्यूरोक्रेट को, डेटा एनालाइज करना और सिंपल मैथमेटिक्स चेक करना, उन सवालों की रेलिवेंस थोड़ी सी कम हुई है इस साल से। इस साल का पेपर हार्ड नहीं था इस बार, जो नंबर थ्योरी वाला पार्ट है, बट वो पिछले अभी तक 10-11 सालों में पूछा नहीं गया है। जो सवाल इस तरह के आए थे वो बहुत बढ़ के आए हैं, मतलब बहुत डिसेंट लेवल के आए नंबर थ्योरी वाले, जो हम अंडर ग्रेड में पढ़ते थे। आपको मैं सजेस्ट करूंगा सिंपल, और आजकल क्या हो रहा है ना, कैट के टीचर्स इसमें करते हैं, कैट पढ़ाते थे जो, मतलब वो इंडस्ट्री बन गई है सी सेट की अलग से। प्रैक्टिस करो, अपने क्वेश्चंस निकालो। जैसे indiabigs.com नाम से एक वेबसाइट थी जो मैं कॉलेज टाइम पे फॉलो करता था,
उसमें ना आपको दुनिया भर के टॉपिक्स लिस्ट होते हैं कि बोर्ड्स, वर्क एंड टाइम, स्पीड, नंबर थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री। उस पर क्लिक करोगे ना तो आपको पूरी वो मिल जाएगा रेंज की, सिंपल से लेके हार्डेस्ट क्वेश्चन तक की। उसमें एटलीस्ट इतना ट्राई करना कि indiabix.com, INDIABIX, INDIABIX, प्लीज कोई टाइप कर दे अगर चैट में तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। indiabix.com, अगर मुझे सही याद रहा है यही नाम है उस वेबसाइट का। उसमें आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं पूरे, उस पर क्लिक करो और इजी से मीडियम की तरफ क्वेश्चन अपने अपने डिफिकल्टी के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। रही बात कॉन्सेप्ट्स की, तो वो आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगा। यूट्यूब पे सीसैट, या क्योंकि कैट से थोड़ा सा सिमिलर टॉपिक है ना, पिक्स नहीं बिक्स है, बी फॉर बॉल, एंड थैंक यू, INDIABIX। मेरे हिसाब से वो सही रहेगा कि आप एक टॉपिक पकड़ो, उसके मीडियम से मॉडरेट क्वेश्चन तक ले जाओ अपने लेवल को, वैसे कर सकते हैं। बट अगेन उसमें भी ये जो इस साल के सवाल आए उनमें से कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सेफली स्किप कर देना, वो बहुत हार्ड है, वो आपको बहुत टाइम खा जाएंगे। जैसे मैंने भी जब सीसेट लगाया था मुझे 2.25 घंटे लगे थे, जबकि मुझे सीसेट लगाने में आज तक 1.5-2 घंटे से ऊपर नहीं लगे हैं कभी भी। मेरे को जितना बनाना होता है पूरा पेपर बना देता हूँ उतने टाइम में। तो इट वॉज हार्ड। नंबर थ्योरी का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन आप ऑन द स्पॉट नहीं बना सकते, उसको प्रैक्टिस मांगते हैं। एक बार को स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, ये सारे क्वेश्चन ऑन द स्पॉट बन जाते हैं। नंबर थ्योरी एक अलग टॉपिक है। अब मैं ऐसे कोई उसमें मत जाना बस कि ट्रिग्नोमेट्री कर लो, ये कर लो, इतने सारे टॉपिक्स जो है मार्केट में इतने सारे टॉपिक्स जो मार्केट में चल रहे हैं कि ये टॉपिक पढ़ लो वो पढ़ लो, उन सब गिमिक्स में अभी मत फंसना। बेसिक्स टॉपिक स्टार्ट करो जो आपको लगता है, नंबर सिस्टम, वर्क स्पीड, टाइम, बोर्ड्स एंड सिस्टम्स, प्रॉफिट लॉस, CISI, इनके बेसिक्स स्टार्ट करो, फिर अपना लेवल अप करते जाना। अब अप करने के चक्कर में नीचे के कोर है उसको मिस कर दो कि सीधे बाहर हो जाओगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बायस के संग मत जाना हर टॉपिक में, इवन RC में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, रीजनिंग में, और इवन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सब में कुछ इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको पकड़ने की आदत डालो। एक गंदी आदत मेरे में भी थी कि मैं पहले मैथ से शुरू करता था और मैं सिर्फ मैथ्स मारता था, मेरा सीसेट तब भी निकल जाता था। बट द पॉइंट वाज कि इंग्लिश में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते थे इजी जो मेरे से एक बार में बन जाते थे, पर मैं उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो वो थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। वरुण सर आपका हैंड रेज्ड है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, क्वेश्चन ये यही था कि चूंकि आपका बैकग्राउंड मैथ्स का है, आपने जीएस के लिए कुछ स्पेशल एफर्ट्स लगाए होंगे प्रिपरेशन के लिए, तो एग्जैक्टली जब पढ़ते थे आप तो क्या क्या पढ़ना चाहते थे, या क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को कि उस एरिया को फोकस करें, या कुछ भी कोई भी चैप्टर लेसन पढ़ रहे हो तो व्हाट डू दे लुक फॉर एग्जैक्टली इन दैट चैप्टर? अच्छा, ओके। 2-3 चीजें मैं बोलूंगा इस वाले में। जैसे मैं पॉलिटी जब पढ़ता था लक्ष्मीकांत से स्टार्ट किया था, बट जैसे कोई वॉलंटियर करे मुझे क्वेश्चन पूछना है। शांतनु आपसे एक सवाल पूछूं मैं कि विच इज द बेस्ट बुक टू स्टडी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? Sir, in my opinion, Lakshmikant will be best, but DD Basu will be better for the men's. नहीं बस ठीक। एंड आपको रियलाइज करना चाहिए कि ये आंसर कितना गलत है। मैं पूछ रहा हूँ विच इज द बेस्ट बुक टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर में लक्ष्मीकांत DD बासु कैसे आ सकता है? आंसर वुड बी द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। जिस किताब को पढ़ना है उस किताब को करने की बेस्ट किताब तो वो किताब खुद है ना। एंड इट्स वेरी रेयर, हम लोग खुद नहीं करते हैं, बेयरएक्स हम फॉलो नहीं करते हैं। मैं बेयरएक्स बहुत पढ़ता था। जैसे पॉलिटी है तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन एक बार लक्ष्मीकांत से बेसिक्स ले लिए कि क्या हो रहा है। लक्ष्मीकांत इज गुड कमेंट्री कि ये आर्टिकल है तो इसके ये रेलिवेंट केस लॉस हैं, ये हुआ था, ऐसे चल रहा है, ये दिया है, नहीं दिया है। उसके बाद आपको बेयरएक्स देखना चाहिए। आप पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जैसे गवर्नर का चैप्टर खत्म किया तो फिर प्रेसिडेंट का चैप्टर खत्म करो, एकदम लिंकेज दिख जाता है कि हाँ ये सेम है, ये डिफरेंस है। पार्लियामेंट किया, स्टेट लेजिस्लेचर करो। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो साथ में एनवायरमेंट पढ़ो, क्योंकि वो नदी नाले पूरे ज्योग्राफी के आएंगे। पूरी जो वेजिटेशन है वो ज्योग्राफी से समझ में आएगी, जो फिजियोग्राफी और ये सब वाले चैप्टर्स हैं, ओशन करेंट्स वाले चैप्टर हैं। एनवायरमेंट उसका एक एडिशनल एप्लीकेशन है। ऐसे साथ में पढ़ सकते हैं। पॉलिटी एंड हिस्ट्री कभी साथ में मत पढ़ना। मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरी पर्सनल ओपिनियन है। पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों फैक्ट हैवी हैं, उसमें बहुत माइन्यूट बहुत सारे फैक्ट्स हैं। एक संग करने में ना बहुत ओवरलोड हो जाओगे। मैं ऐसे करता था, अगर पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ूंगा साथ में, ताकि बहुत ज्यादा फैक्ट्स ना हो जीवन में मेरे। अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो हिस्ट्री फैक्ट हैवी है तो मैं उसमें ज्योग्राफी के ट्रेंड्स पढ़ूंगा बस। वो दिया आइजोथर्म वाला चैप्टर है या ओशन करेंट्स की मूवमेंट वाला चैप्टर, वो बाय एंड लार्ज कंसेप्चुअल है। एक थ्योरी वाले हैवी के सब्जेक्ट के संग एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक रख सकते हैं।
इसके अलावा जीएस में जो वैल्यू एडिशन है वो टॉपर्स कॉपी से किया था मैंने। मैं उनका क्वेश्चन मैं सिंपल करता था, जो जीएस वाले टॉपिक्स हैं उसमें जो मान लो मेंस का कोई क्वेश्चन आया है सिंपल सा, मैं उसके हिसाब से करता था कि उनका क्वेश्चन पढ़ा टॉपर्स कॉपी से, अपना आंसर रफ फ्रेमवर्क बनाया, वापस उनकी कॉपी देखी, फिर देखा उनने क्या अलग किया है, उनने फ्लो चार्ट बना रखा है, मैंने नहीं बना रखा, उनने अंडरलाइनिंग की है, उनने कीवर्ड्स अलग तरह से तोड़े हैं, मैंने अलग तरह से तोड़े हैं। ये रिवर्स लर्निंग से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो बेसिक तो इतना ही किया था। एक बार चैट के क्वेश्चंस ले लेते हैं थोड़े से ऊपर से। कंसिस्टेंसी तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव अफेयर, आपको खुद से करना पड़ेगा कि व्हाई आर यू इन दिस साइकिल, और आप कब स्वीट स्पॉट देख के रखना कि आप कब इससे एग्जिट करना चाह रहे हैं, कि अब बहुत ड्रॉप ले लिए, अब मैं वापस कुछ और स्टार्ट कर रहा हूँ, शायद इसके साथ में अटेम्प्ट देता रहूँ पर खाली नहीं बैठना है, आपकी वैल्यू डिटेरिएट हो रही है। क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल, अगेन वही, मैं कुछ नहीं बता सकता कि क्या करना है क्या नहीं करना। इट्स वेरी सिंपल कि आप जो कर रहे हैं उसमें से कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए। दैट विल कम फ्रॉम कीपिंग योर बुक्स टू अ बेयर मिनिमम, जो हर टॉपर कहता है और कहता आ रहा है अभी तक। रिवीजन जितने ज्यादा कर सकेंगे वो हेल्प करेगा। अगेन नॉट समथिंग जो मैं अनोखा बोल रहा हूँ, सब यही बोल रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टच में रहेंगे तो आपको आइडिया लगता रहेगा कि किस तरह के सवाल या ऑप्शन बन सकते हैं। प्रीलिम्स में थोड़ा कम रेलेवेंट है, मेंस में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। सर आई पास सेकंड ईयर ऑफ बीएससी मैथ्स ऑनर्स, सो आई कैन प्रिपेयर इन थर्ड ईयर फॉर ऑप्शन मैथ्स में ग्रेजुएशन। ओके, मैंने जो किया था, मैंने कॉमन टॉपिक्स उठा लिए थे कि यूपीएससी के सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं और मेरी ग्रेजुएशन में अभी तक मैं जो टॉपिक्स पढ़ चुका हूँ उनको किसी भी मैं कोई अलग मैथ्स के लिए कोई अलग बुक फॉलो नहीं करी। मैं अपनी जो डीयू में बुक्स चलती हैं उन्हीं को फॉलो किया था आखिर तक, मुझे उन्हीं से हेल्प लग जाती थी क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं मैथ्स में। ये किया था, प्लस मैंने क्या किया था ना, फिर जो आईआईटी जैम का एग्जाम होता है और यूपीएससी का एग्जाम होता है, इन दोनों जो मैथ्स के कॉमन टॉपिक्स हैं उन कॉमन टॉपिक्स को अपने दोस्तों से जो जैम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास जो मटेरियल होता है उनसे मैं देखता रहता था। मैंने से खरीदा वगैरह नहीं था कुछ मटेरियल्स, एंड सब्सक्राइब नहीं की थी उनकी जो महंगी आती है, 2-3 कोचिंग्स के नाम चलते हैं उनसे। मैंने उनका मटेरियल लिया तो मैंने देखा था कि कितना हैवी जा सकती हैं चीज़ें, तो वहाँ से थोड़ा सा जो कॉमन टॉपिक है उनके लिए मेहनत की थी। और मैंने आईआईटी जैम का एग्जाम भी इसी चक्कर में दिया था कि मेरी मैथ्स में कितनी पकड़ है, मैं 3 साल से एक डिग्री परस्यू कर रहा हूँ, तो लेट्स गेज की कितनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन है। अगेन जज करने की जरूरत नहीं है खुद को। मेरी रैंक 2 आ गई थी, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नहीं आ रही तो आपका नहीं निकलेगा, वो ऐसे कि मेरी आ गई थी, मैंने मुश्किल से 2-3 महीने पढ़ा। कंसोलिडेट करो और रिवीजन और लिख के देखते रहना। हाउ टू मैनेज एसएससी प्रिपरेशन विद यूपीएससी, ये तो यार बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें आपको मैथ्स और सीसेट वाला पोर्शन उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एसएससी में वो सब क्वेश्चंस भी आते हैं क्योंकि जीएस वाला एसएससी अलग तरह के सवाल पूछता है, यूपीएससी अलग तरह के सवाल पूछता है। मैंने ऐसा कुछ तो नहीं पढ़ा था, मैं मैथ्स और रीजनिंग में कॉन्फिडेंट रहता था अपनी, और ये वाला नहीं पढ़ लेता, और जो यूपीएससी की नॉलेज है जीएस वाली वो उसको यहाँ अप्लाई कर लेता था, उससे मेरा काम चल जाता था। बट अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो मतलब हाँ, अगर आप कोई भी दूसरा एग्जाम साथ में करना चाह रहे हैं तो अपनी टाइमलाइन बहुत क्लियर रखना कि ये वाले एग्जाम का ये वाले दिन महीने में ये चीज़ होगी, दूसरे वाले की ये चीज़ होगी, ताकि क्लैशेस ना हो और आपको थोड़ी क्लैरिटी रहे। क्योंकि कभी कभी आपको चूज करना पड़ेगा कि जैसे मुझे चूज करना पड़ा था अपने यूपीएससी के इंटरव्यू के आसपास, एसएससी का शायद फाइनल जो राउंड होता है जो भी था वो 2-3 दिन का एग्जाम होता है, वो बहुत क्लोज में आ गए थे, तो मुझे चूज करना पड़ रहा था कि मैं ये करूंगा या ये करूंगा। तो मैंने एसएससी को ड्रॉप कर दिया था उस टाइम पे कि साइड करते यूपीएससी पे ध्यान देते हैं। आपकी एग्जाम साइकिल्स में जब 2 एग्जाम सॉरी 2 एग्जाम जब साथ में लेके चलेंगे तो आपको बहुत बार चूज करना पड़ेगा। तो मेरे पास ऐसी पूरी टाइमलाइन बनी रहती थी कि इस महीने में ये करना है, उस महीने में वो करना है। तो जब चूज करने की बारी हो तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा प्लान ए क्या है, प्लान A1 क्या है, प्लान बी क्या है, वो क्या है, तो उस ऑर्डर में एलिमिनेट करना आसान होता है बस। बाकी देखिए टाइम बहुत लगेगा, एसएससी और यूपीएससी साथ में करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इनिशियल अटेम्प्ट्स में, तो इनिशियल अटेम्प्ट्स में आई वुड सजेस्ट यूपीएससी के हिसाब से तैयारी करें। हाउ टू टैकल क्वेश्चंस आस्किंग क्रिटिकली एग्जामिन, डिस्कस, कमेंट, इवैल्यूएट। अरे बहुत ईजी है यार, कुछ दिक्कत नहीं है। टॉपर्स कॉपी उठाओ, उनकी एक बेसिक थीम होती है क्रिटिकली एग्जामिन में। इट गोज लाइक कि आपको नेगेटिव्स और पॉजिटिव दोनों पे ध्यान रखना है, बैलेंस्ड आंसर देना है। डिस्कस इज अबाउट वो आपसे आपकी ओपिनियन वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं,
दे जस्ट वांट यू कि उनने जो सवाल पूछा है कि फॉर एग्जांपल से क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर डिस्कस, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, तो आपको बस दिखाना कि क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर पे क्या कैसे कैसे इम्पैक्ट डालता है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव्स ये वो उन सब पे ज्यादा लिखना नहीं होता। कमेंट इवेल्युएट, अब जैसे एक एक कीवर्ड पे मैं बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। आप गूगल करेंगे ना, टेल एंडर्स बोलते हैं इन्हें, TA, मैं टाइप कर देता हूँ, टेल एंडर्स वर्ड बोलते हैं इन्हें। आपको 2 पन्ने की PDF मिल जाएगी जिसमें लिखा रहता है कि डिस्कस वाले क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करना है, इनको कैसे एड्रेस करना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि टॉपर्स को भी पढ़ेंगे ना जब आप बैठ के आराम से, तो बहुत बहुत जल्दी सॉर्ट हो जाती हैं चीजें, आपको समझ में आ जाता है कि कैसे लिखते हैं क्या करते हैं। हाउ टू बी, सॉरी एक सेकेंड, व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल चूजिंग एन ऑप्शनल। अगेन सॉरी मोहित, बट बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी। ऑप्शनल को मार्क्स आने चाहिए, गाइडेंस होनी चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, आप टेस्ट सीरीज में कहीं फंस रहे हैं तो कुछ टीचर सपोर्ट होना चाहिए। रिसेंट परफॉर्मेंस भी कुछ लोग कंसिडर करते हैं कि पिछले 2-3 साल में मार्क्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, हाईएस्ट मार्क्स कितने रहे हैं, सिलेक्शन परसेंटेज कितना रहा है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। आप यूट्यूब वीडियो देख लेना 15-20 मिनट की, कोई भी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, उनके हिसाब से अपना इंटरेस्ट प्रेफरेंस वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बियॉन्ड द पॉइंट पढ़ना आपको है। लेंथ, सोच लोग बोलते हैं सोशियोलॉजी एंथ्रो छोटे सब्जेक्ट हैं जल्दी खत्म हो जाएंगे, बट देन द पॉइंट इज कि वो सब्जेक्ट कम सबके लिए हैं। मैं 3 महीने में कर सकता हूँ, कोई और भी 3 महीने में कर सकता है, तो वो वाला इक्वलाइजिंग फील्ड रहती है। आपको इसलिए इंटरेस्ट की बात इसलिए आती है क्योंकि जब इंटरेस्ट होता है तो आप ज्यादा टाइम दे सकते हो, उन ज्यादा एफर्ट्स की वजह से आपको शायद 1-2 नंबर ज्यादा मिल जाए। एंड अल्टीमेटली इट्स एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन 1-2 मार्क्स की ही वैल्यू है। सर आई मेरा BA फर्स्ट ईयर, आई स्टार्ट मेरी फर्स्ट टाइम, आई वुड सजेस्ट कि मत करो अभी, एटलीस्ट 1 साल 2 साल कॉलेज का एक्सप्लोर कर लो, पर्सनैलिटी बिल्ड होने में बहुत अच्छा लगता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी वो पर्सनैलिटी हो। आप सिर्फ UPSC में घुसे रहेंगे 3 साल लगभग, ये मान लीजिए 1-2 अटेम्प्ट में नहीं होता, विच इज़ वेरी कॉमन, 1-2 अटेम्प्ट में निकलना इज़ वेरी रेयर, तो आपके 5-6 साल सिर्फ एक एग्जाम के ऊपर चले गए हैं जिसमें आपने शायद बाकी चीज़ें एक्सप्लोर भी नहीं की। उनको शायद एक्सप्लोर करते शायद आपको क्लैरिटी रहती है उनकी, ये नहीं कर पा रहा हूँ तो आगे और क्या कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने शुरू के 2 साल में सब कुछ किया कॉलेज में, सब तरह की सोसाइटीज, इवेंट्स, गेम्स, कॉम्पिटिशन्स, इवन एग्जाम्स भी जो होते हैं सब दिया था मैं। तो मुझे पता था कि मेरा मैथ्स क्वांट बहुत अच्छी पकड़ है, UPSC नहीं हुआ तो डेटा एनालिसिस वाली फील्ड बूम कर रही है, मैं थोड़ी सी, मेरा एक्सेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो 2-3 स्किल्स मैंने एक्वायर किए थे उन 2-3 साल की स्ट्रगल में, स्ट्रगल तो क्या, जो हसल चल रही थी उन टाइम में, उनकी वजह से जीवन में कॉन्फिडेंस रहता था कि ये नहीं होगा तो और कुछ चीज़ें हैं बहुत अच्छी करने को। अगर वो नहीं करता तो मैं 2 साल बाद शायद ऐसा हो जाता कि कुछ भी नहीं है हाथ में और शायद कुछ और मैं कर भी नहीं सकता। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक्सप्लोर करते रहें, एटलीस्ट सेकंड ईयर तक तो करें, फाइनल ईयर में आपका कॉल है पर्सनल। हमारे टाइम कोविड था तो उस पर मैं कुछ कर नहीं पाया था, वरना उस टाइम में मैं कुछ नया एक्सप्लोर कर रहा होता। हाउ टू प्रिपेयर सिलेबस विद इन टाइम व्हाइल देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक्स इन ब्रॉड सिलेबस। अरे यार, ये तो मैंने बताया ना, ऑप्शनल का 6 महीना, GS का 10 महीना, फिर आखिर में प्रीलिम्स का 5 महीना, मेंस वाला 3 महीना, उन 10 महीने में आपको डिवाइड करना पड़ेगा उसी ऑर्डर में जैसे बोला ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, उनके हिसाब से बंडल्स बनाने पड़ेंगे आपको। रफली 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं अगर आप ऐसे देख के चलेंगे ना, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का एक बंडल, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल का एक बंडल, ऐसे 4-5 मेजर बंडल आइडेंटिफाई करो, उन बंडल्स को 2-2 महीने में गैप में लगाओ। एंड ऐसे मत करना कि आप 5 सब्जेक्ट दिन में पढ़ रहे हो 1 घंटा, नहीं तो उससे क्या होगा ना, मान लो हर सब्जेक्ट 1 महीना लेता है, ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट 5 महीने लेंगे, आप रोज 1-1 घंटा 5 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपके 5 महीने बाद जाके सारे सब्जेक्ट एक संग खत्म हो जाएंगे। उसकी दिक्कत क्या होती है, आप रिवाइज नहीं कर पाते, प्लस आपको जो ये 5 महीने के पीछे ना वो पॉइंट्स आते हैं कि मेरा कितना सिलेबस हो गया कितना नहीं हुआ, आप उसमें किसी पर टिक ही नहीं मार पाएंगे कि ये सब्जेक्ट मेरा हुआ है या नहीं। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि दिन में शायद 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ो, तो उससे क्या होगा ना, 1 महीने जब सब्जेक्ट खत्म होते हैं ना, टिक मारना, हाँ ये हो गया है, ये हो गया, उससे थोड़ा फ्लो बना रहता है बस। बाकी ये क्वेश्चन बाय एंड लार्ज स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल का है, तो वो जो मैंने मना किया आप इस सेशन में एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आप बढ़िया जाके बाहर प्रॉपर स्टॉक्स देखिए। मैं जैसे कनिष्क कटारिया सर रैंक 1 2018 और ऐश्वर्य वर्मा सर रैंक 4 लास्ट ईयर, उनकी फॉलो करता था, मुझे वो 2 लोग अच्छे लगते हैं, टॉपर्स अच्छे लगते हैं वो। एंड उनकी टेलीग्राम चैनल वगैरह भी है, तो उन पर बहुत डिटेल में दुनिया भर की चीज़ें लिखी हुई हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। योर ओपिनियन ऑन UCC, अभी सॉरी दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस टॉक, अभी बेसिक क्वेरीज एड्रेस कर रहा हूँ उसमें, अगर टाइम बचेगा तो आखिरी में लेते हैं। यू आर अबाउट टू जॉइन अ सर्विस, yes, indiabix.com, हाँ।
वेरी फ्यू आर गोइंग टू फेस पॉलिटिकल सिनेरियो। यार अभी मैंने सर्विस ज्वाइन नहीं किया तो मुझे आइडिया नहीं है पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होता है, एंड शायद अभी ट्रेनिंग में ये लोग सिखाते होंगे, शायद मुझे कोई आइडिया नहीं है तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा इस पे। एंड अभी उसमें टाइम है यार, अभी तो ऑन ग्राउंड पोस्टिंग होने में मुझे लगभग 1-2 साल लग जाएंगे। थोड़ा हैंड रेजेस किस किस के हैं? कुमार सिंह प्लीज। सर मुझे ये जानना था कि सर जो आपने बोला कि तैयारी करने में ही सर 2 साल मान के चलिए कि 1 साल आप करते हैं, तो सर कोचिंग कौन से ईयर से ज्वाइन कर लें, सेकेंड ईयर से, या फिर एक आइडिया लेने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, इंटेलिजेंट तो सर मैं हूँ नहीं कि 1 साल में हो जाएगा सब कुछ। तो सर कोचिंग कौन से ईयर से ज्वाइन करा जाए ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए, पढ़ाई भी हो जाए और एक क्वालिटेटिव प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। आप कौन से बैकग्राउंड से हैं? सर मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूँ और मेरा ये फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर है, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, और अगले महीने से हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और उसके अगले महीने से हम सेकेंड ईयर में आ जाएंगे। ठीक ठीक। यार अगेन देखो, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने कोचिंग ली थी और मैं बोल दूं कि आपको जरूरत नहीं है तो एक थोड़ा सा हिपोक्रेसी वाली बात है ना? मतलब बहुत फ्रेंकली बात करें, और क्या ही है, मैं खुद कोचिंग करे बैठा हूँ फिर आप सबको मना कर दूं तो सेंस नहीं लगता। मेरी कोचिंग लेने का रीजन ये था कि मैं साइंस बैकग्राउंड से था। मैंने 10th के बाद 11th 12th फिर कॉलेज के 3 साल मैं 5-6 साल से टच में ही नहीं था ह्यूमैनिटीज के। प्लस 10th में भी जो किए थे मुझे पता था मैं कैसे पास होता था उनमें, मेरा कभी इंटरेस्ट आया नहीं अनलेस यूपीएससी स्टार्ट करने में, क्योंकि ये जो किताबें बहुत अच्छी हैं, उनको पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है। एटलीस्ट जब आप शुरू के 1-2 अटेम्प्ट में होते हो। वो लक्ष्मीकांत पहली बार पढ़ने में बहुत मजा आ रहा था, मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा था पढ़ने में, ये इस तरह से मैं कभी पढ़ा ही नहीं था चीजें। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ कोचिंग, मैंने नहीं ली थी। मैं कॉलेज, मेरा ऐसा था कि कॉलेज 3 साल का ही है, मैं सब कुछ एक्सप्लोर करूंगा, क्योंकि कॉलेज लाइफ विल नेवर कम बैक। आप मास्टर्स में भी जाएंगे तो वहाँ के कॉलेज और अंडर ग्रेड के कॉलेज में अलग अंतर होता है। अंडर ग्रेड में आप बेफिक्र होते हैं तो आप ज़्यादा चीज़ें सीखने की कैपेसिटी रखते हैं। दिस इज माई पर्सनल बिलीव। मेरा कोचिंग लेने का सोल रीज़न था कि मुझे बिल्कुल टच में नहीं है। मैं एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश की थी मैंने 11th-12th की बेसिक्स वाली, उनसे मेरे से नहीं हो रहा था, कुछ मेरे से नहीं बन रहे थे सवाल, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, उस वजह से मैंने कोचिंग लेनी पड़ी। तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले 11th-12th की एनसीईआरटीज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है, उसने एनसीईआरटीज खुद से पढ़ी, उसका भी साइंस बैकग्राउंड था, और ये जो टाइम आया उसका जब उसने प्रीलिम्स दिया तो उसका अराउंड कट ऑफ से 10 नंबर कम थे। गुड पार्ट इज कि अगर आप कोचिंग भी लेते हैं तो मान लो 80 नंबर कट ऑफ है, तो कोचिंग, सिर्फ कोचिंग के भरोसे अगर आप जाएंगे तो आप शायद 30-40 नंबर का बना लेंगे। उन 40 नंबर को 80 नंबर में कन्वर्ट करने में कोचिंग का रोल कम, आपकी मेहनत का रोल ज्यादा है। आप एनसीईआरटीज पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। प्रीवियस ईयर में वो वाले मत देखना जो उस साल करंट अफेयर्स में थे, इस वजह से न्यूज में आए थे। जो स्टैटिक क्वेश्चंस क्या आप वो बना पा रहे हैं, आपका कट ऑफ 40-50 नंबर आप ला पा रहे हैं अगर सेल्फ स्टडी करके, तो इन दैट केस आप कोचिंग ले सकते हैं, पर आपको बेनिफिशियल नहीं होगी। अगर आप एक स्टार्ट के लिए चाह रहे हैं कि मुझे तो कोई स्ट्रक्चर बना के दे दे, मेरे को क्लासेस मिल जाए, मैं उसी के हिसाब से अपना डिसिप्लिन सेट कर लूंगा, फिर आप कर सकते हैं। बट इवन इन दैट केस आई वोंट सजेस्ट कि आप 3rd ईयर से पहले लेंगे, क्योंकि 3rd ईयर में आप लेंगे, मतलब आप ले सकते हैं 2nd ईयर से, कि आप 2nd ईयर 3rd ईयर मतलब आप मान के चलिए लगभग 1.5 साल की कोचिंग चलेगी आपकी, एक्सक्लूडिंग ऑप्शनल। ऐसे ही चलता है वो, संडे ऑफ से रहते हैं, जो भी रहता है उनका शेड्यूल। आप 2nd ईयर से ले लेंगे, 3rd ईयर के एंड तक खत्म हो जाएगा। बट पर्सनली आई हैव नॉट मेट अ सिंगल पर्सन जिसने 2nd ईयर से कोचिंग लेनी चालू की हो और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाया हो 3rd ईयर तक। वो क्लासेस छूट ही जाती हैं, असेसमेंट आ जाते हैं इंटरनल के, जो भी होता है। 3rd ईयर में आप भी सीरियस होते हैं। 3rd ईयर में जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप, मैं जितने लोगों को देखा हूँ 3rd ईयर में जिन्होंने स्टार्ट किया दे हैव कंप्लीटेड देयर कोचिंग वेरी वेल, उनके नोट्स हैं, सब है। वो 2nd ईयर में बस न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी से फोकस करते थे, जो स्टैटिक है कोर है और उसको खत्म करते थे। तो इन माय हम्बल ओपिनियन 2nd ईयर में आप स्टार्ट कर सकते हैं खुद से पढ़ना। अगर कोचिंग लेनी है तो 3rd ईयर में लेना, बस तब तैयारी बनी रहे, एंड फिर आपको जैसे कर लगे सही। और किसी का हैंड रेज्ड है? थैंक यू सर। चैट की कोई शांतनु? हाँ So first of all, sir, congratulations for your selection. And my question is that, sir, which things should be kept in mind while giving your first attempt just after the college? बेसिक्स गलत करके मत जाना, पॉलिटी के सवाल गलत नहीं होने चाहिए, स्पेशली जो लक्ष्मीकांत से आ रहे हैं। ठीक है, जो स्टैटिक किताब पढ़ रहे हैं ना उसमें से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। एक आध क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, उतना हो जाता है, ह्यूमन एरर है, पर ब्लंडर्स नहीं होने चाहिए।
अगर मॉडर्न स्पेक्ट्रम पढ़ी है मॉडर्न की इंडियन हिस्ट्री के लिए, तो उससे सवाल आया वो गलत हो गया तो आप रेस से बाहर हो, क्योंकि जो 2-3 साल से पढ़ रहा है, जो ऑलरेडी सर्विस में सिलेक्टेड है, वो ये क्वेश्चन नहीं गलत करेगा, उसको किताबें एकदम पता है प्रॉपर अच्छे तरह से। वो उन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला अटेम्प्ट में टेस्ट ज़्यादा दे सकते हो आप, इंक्लूडिंग सेक्शन और फुल लेंथ के जो मिक्स होते हैं ना, रफली अगर आप, जैसे मैंने जो दिया था मैं मिक्स एंड मैच करके, मैं विजन और फोरम के करता था, मार्केट से जो मिल जाते हैं ना उनको अपने हिसाब से करता था। मैं उनको एनालाइज करने के लिए अपनी एक्सेल शीट बनाई थी मैंने, वही shubhamkumaryaadav.com करेंगे, आपको मिल जाएगी, उसमें देख लेना मैं कैसे करता था। वो भी कंप्लीट नहीं है, उसको मैं अपडेट कर दूंगा। तो वही रिवीजन सबसे ज़्यादा पर फोकस करना है। किताबें सबसे मिनिमम, एडिशनल किताबें मत करो। एनसीईआरटी और एक स्टैंडर्ड बुक जो होती है मार्केट में अवेलेबल, उनको अच्छे से, उनमें सवाल गलत नहीं होने चाहिए। टेस्ट थोड़े ज़्यादा दे सकते हैं, रफली आई वुड सजेस्ट कि 25-30 टेस्ट देने तो बनते हैं पहले अटेम्प्ट अगर आप हैं, और थोड़ा पहले से स्टार्ट कर देना, जनवरी से थोड़ा थोड़ा फील्ड में आना स्टार्ट कर देना, क्योंकि वो मैंने पहले अटेम्प्ट में शायद 30 के आसपास टेस्ट दिए थे। सेकंड अटेम्प्ट में क्योंकि मेरा पहली बार प्रीलिम्स नहीं होता, तो मैंने 50 टेस्ट दिए थे दूसरी बार में। ये 3-4 चीजें हैं। रिवीजन है, टेस्ट सीरीज का नोट्स बनाना, तो मान लो एक टेस्ट दिया है तो एक टेस्ट एक A4 शीट में आ जाना चाहिए, उसकी जो भी समरी है, जो भी आपको डेटा नोट करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे आप 50 टेस्ट अगर साल, मैंने सेकंड अटेम्प्ट में दिए थे, मेरे पास सिर्फ 50 A4 शीट्स थी जिसमें मेरी सारी टेस्ट की गलतियां लिखी हुई थी। इस सेंस में फोरम वाला टेस्ट अच्छा है, उसमें क्या है वो नीचे लिख देता है कि लक्ष्मीकांत पेज ये वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, तो सीधे जाओ वहाँ अंडरलाइन कर लो, उनको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सिर्फ फोरम का रिलाई मत करना, मिक्स It is करते SFG, I think SFG test series. जो भी है, मुझे नाम याद नहीं है, शायद SFG है। मिक्स एंड मैच करते रहना, काफी हेल्पफुल रहते हैं वो। विजन के भी अच्छे हैं और इनके भी अच्छे हैं, मैं ये दोनों फॉलो करता था मिक्स एंड मैच में, तो बढ़िया से एक जगह मिल जाता था। और कोई क्वेश्चन है? When should we totally shift from mains preparation to prelims specific preparation? Prelims specific only. मैं समझ गया वो क्वेश्चन क्या है। देखो तैयारी तो साथ में होती है, किताबें सेम रहेंगी, सब सेम रहेगा, जोन बदल जाता है। मेन से इट्स अबाउट रिकॉल वैल्यू। आपने टॉपिक पढ़ा प्रेजेंट, आपको रिकॉल होना चाहिए, हाँ आर्टिकल ये है, आर्टिकल 51 ये। प्रीलिम्स इज अबाउट कि आप किताबें कितनी बार आंखों के सामने से निकाल पा रहे हो, आपको देखा आपके ऑप्शन सामने, आप टिक मार पा रहे हो कि नहीं। उसके लिए बस किताबें वही रहेंगी, जोन वही रहेगा। कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में ज्यादा पढ़ने पड़ते हैं, जैसे मैप वर्क है, ज्योग्राफी वाला, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो प्रीलिम्स में ज्यादा फोकस रहता है। मेंस में जो एथिक्स वगैरह वाला फोकस है वो उसमें ज्यादा रहता है। उनके लिए बस अंतर ये है कि जो किताबें इनके अलावा जो कॉमन है, मेंस में उनको रिकॉल करने की वैल्यू आती है कि आप रिकॉल कर पा रहे हो, उसमें बैरेट्स काम आते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा तो आपको याद रहता है कि आर्टिकल ये वाला था, वो था, ये नहीं था।